Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we'll be learning arrays in JavaScript. We'll be covering arrays from basic to advanced level so that you can clear interviews as well as you understand the concept and implement it in your project. And later on, we'll be solving problems related to arrays in LeetCode. Okay, so without wasting of time, let's get started. We'll be starting from the basics of array. The first is declaration. So declaration, how you declare an array in JavaScript. Okay. So there are two ways of declaring array. First is square bracket. Square bracket देके हम array declare कर सकते हैं. The second approach is array constructor. Constructor लगा के, ठीक है? Like if you might have studied other programming languages, so we create arrays uh, with in Java mostly we create array using constructor. Okay, array constructor. So this is one way of creating array. Like अगर मैं ये value भी हटा दूँ, then also we can create array with an empty square bracket. Second one is array constructor. We use new keyword and array constructor to declare an array. ठीक है, तो हम इस पे कुछ वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं from the beginning. We can initialize it while declaring. Okay, the second point is dynamic size. So arrays in JavaScript doesn't hold any fixed length. Okay, ये length इसका होता है, but you don't need to give a fixed length from while initialization. ये हम वैल्यूज के इन आइटम्स के हिसाब से, जितने भी आइटम्स होंगे उसके हिसाब से इसका लेंथ बढ़ता रहेगा और घटता रहेगा, ठीक है. सेकंड वन इज इंडेक्सिंग. सो इसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है. So like first element will be considered as 0 index, second element will be considered as 1 index, so likewise. Okay, and here I am trying to print the first index of array 1. First index क्या होता है 0, to 0, and here I will be expecting to get the value 1, and on the second one here second index value array 2 ka 1, which is nothing but 5. Okay, so if I run this code, I'll be getting first index is 1, second index is 5. I hope you got to know like how you can declare array. Okay, so let's go to the second chapter. Okay, so data types. So basically arrays in JavaScript hold heterogeneous data, like multiple different kind of data type where data it can hold. Like in this array, mixed array, you can have a number, you can have one string, you can have boolean value, even you can have one object. You can have one object in an array. So you don't need to mention like the kind of array. In other programming languages, you mostly while declaring array, you mostly give the type of array, the type of value it will be holding. But in JavaScript, your array can hold every kind of values. Okay, so if I print, we'll be getting all the values in an array. Okay, let's go to chapter 3. Okay, so common properties and methods. This is most important thing. Like you should remember all the methods and properties of JavaScript so that while doing any project, ठीक है, project बनाते वक्त you don't need to go to Google Chrome and how to do this, how to do that, or you don't need to ask ChatGPT how I can add values in array and all. Okay, so if you know, if you keep in your mind all the methods, how it does it work, so it will be very easy for you to implement it in your project. Okay, so length, ये एक प्रॉपर्टी है array का. When you declare one array, it will be holding one property length, जो रिटर्न करेगा the length of the array. ठीक है, कितने एलिमेंट्स है इसके पास. Like I have an array 10, 20, 30 जिसके अंदर हमारा लेंथ है जिसके अंदर like if I try to print the length of it, like I'm expecting to get the value 3. ठीक है, so if I run this code, you can see we are getting length 3, right? So next topic is mutator methods. So mutator methods में क्या होता है mostly like all the arrays that you have, उसमें कैसे एलिमेंट ऐड कर सकते हो, उसको एक्सपैंड कर सकते हो, उसमें उसको उससे एलिमेंट रिमूव कर सकते हो, तो म्यूटेट करना मोस्टली. So how can you do that? So first method that we have is push. Push method क्या करता है, adds an element to the end. एक array में like if this is an array, उसके end पे एक element add कर देगा. So if its syntax is like push 40. So what does this method do?
लाइक पुश 40 आई रोट, यहाँ पे ये 40 ऐड कर देगा, ठीक है। लाइक एट द एंड ऑफ द एरे ये एक एलिमेंट ऐड करेगा जो हमने पास किया, 40 हमने पास किया, तो एट द एंड ऑफ द एरे ये 40 ऐड कर देगा। so if I try to console it after pushed will be our array will be like push कर दिया है, so after pushed 10 20 30 40 40 has been added to the array at the end of the array, okay। then the second one comes pop। pop क्या करता है, removes last element। जो last element होगा for the moment हमारे जो array है उसमें क्या एलिमेंट है, 10 20 30 एंड 40, राइट। पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। लास्ट एलिमेंट क्या है, 40। इफ आई राइट पॉप एंड ट्राई टू do pop and try to print the array, after that after popping it what value I'll be receiving। after pushed हमारे पास क्या था, 10 20 30 40, after popped 10 20 30, the last element got removed, okay। उसके बाद क्या आता है, ओके उसके बाद क्या आता है, शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। सो बाय नाउ आवर एरे इज 10 20 30, राइट। ये हमारे पास आ रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव कर दिया। फर्स्ट क्या है, 10 है, तो अगर हम एरे डॉट शिफ्ट लिखते हैं व्हाट विल हैपन, तो आई एक्सपेक्ट हमारा 10 वैल्यू रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, मतलब 10 रिमूव हो जाएगा, 20 30 बचेगा। फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट करेंगे आफ्टर शिफ्ट, प्रिंट करेंगे, इसमें क्या मिलेगा, 20 एंड 30, वेयर इन द कोड हमें मिलेगा आफ्टर शिफ्ट 20 एंड 30, ओके। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करते हैं, एड्स एन एलिमेंट टू द बिगिनिंग। जैसे उसने क्या किया, एट द एंड पे नंबर ऐड किया, वैसे अनशिफ्ट क्या करेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग 0 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट ऐड करेगा। तो अगर हम हमारा एरे है, अभी हमारे पास जो एरे है वो है 20 एंड 30, राइट। अगर मैं यहाँ पे अनशिफ्ट करते हैं, अनशिफ्ट क्या करता है मोस्टली, एड्स एन एलिमेंट टू द बिगिनिंग, तो एलिमेंट ऐड करेगा। इफ आई वांट टू ऐड 100 ऐड करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, सो आई वांट माय रिजल्ट टू बी लाइक 20 एंड 30, क्योंकि मैंने 100 ऐड किया स्टार्टिंग पे। तो यहाँ पे अगर कंसोल करते हैं आफ्टर अनशिफ्ट, ठीक है, आफ्टर अनशिफ्ट क्या मिलता है हमको, 100 20 30। पहले क्या था, 40 ऐड हुआ पुश से, पॉप से 40 रिमूव हो गया, शिफ्ट से 10 रिमूव हो गया स्टार्टिंग से, 20 30 बचा, फिर हमने ऐड किया अनशिफ्ट फ्रॉम द बिगिनिंग 100 20 30, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज स्प्लाइस डू। ओके, स्प्लाइस एक इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेथड, समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऐड करता है, रिमूव भी करता है, रिप्लेस भी करता है एलिमेंट्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, एरे स्पेस इंडेक्स डिलीट काउंट। इंडेक्स क्या है, कहां से आप ऐड रिमूव और रिप्लेस करना चाहते हो। सेकंड पैरामीटर इज डिलीट काउंट, कितने अमाउंट, कितने एलिमेंट्स यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द इंडेक्स। इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, कितना एलिमेंट यू वांट टू डिलीट। then later on all the parameters that you pass those will be considered as element, ठीक है। वो एलिमेंट, क्या एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, तो वो वही होंगे, ठीक है। सो इफ आई ट्राई टू डू ऐड यूजिंग स्प्लाइस, तो क्या होगा, हमारे पास अभी जो एरे है वो क्या है, इक्वल टू, इफ आई रन दिस क्वेरी, ठीक है, हमारे पास जो अभी एरे है वो है 100 20 एंड 30, राइट। तो हमारे पास जो एरे है 100 20 एंड 30, ठीक है। तो एडिशन के बाद हम ऐड करना चाहते हैं 200 एट द एंड पे, और वी कैन ऐड
इन बिटवीन, मैं चाहता हूँ 20 के साइड पे, 20 के साइड पे 30 से पहले आई वांट टू ऐड 200. तो हाउ विल आई डू दैट? हम क्या करेंगे, array डॉट स्प्लाइस, फर्स्ट थिंग इंडेक्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू ऐड. मैं चाहता हूँ इंडेक्स 2 पे ऐड हो. ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, चाहता हूँ 2 पे ऐड हो, 2 पे. अभी डू यू वांट टू डिलीट एनी काउंट, डिलीट काउंट, डू यू वांट टू डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम 2? मैं चाहता हूँ नहीं, आई विल नॉट डिलीट एनीथिंग, 0. ओके, देन उसके बाद item 1, item 2, all the elements that you want to add. मैं चाहता हूँ 200 ऐड करने के लिए, so I'll give here 200. Okay, that's all. ठीक है. अभी if I console after splice add, my array is what I'm expecting, 100 आए, 20 आए, 200 आए, then 30 आए. This is what I want कि 20 के बाद 200 ऐड हो जाए. ठीक है, rest of things will be as it is. ठीक है. तो मैं अगर इसको रन करता हूँ, I'll get 100, 20, 200 and 30 after splice add. ठीक है, ऐड हो गया. This is how you will be adding item using splice. उसके बाद चलते हैं रिमूव कैसे करेंगे. ठीक है, हमारे पास array डॉट स्प्लाइस. ठीक है, क्या रिमूव करना है? मैं चाहता हूँ 20 को रिमूव करने के लिए. ठीक है, मैं चाहता हूँ 20 रिमूव हो जाए, तो फिर उसके बाद हमें जो array मिलेगा वो होगा 100, 200 and 30. तो 20 को कैसे रिमूव करेंगे? तो फर्स्ट इंडेक्स हमें देना पड़ेगा. इंडेक्स क्या है 20 का? 1. ठीक है, 1. फिर आता है डिलीट काउंट, कितना एलिमेंट हमको डिलीट करना है. मुझे बस 20 को ही डिलीट करना है, मतलब एक एलिमेंट, तो मैं दे दूंगा यहाँ पे एक. दैट्स ऑल. ये हो गया डिलीट के लिए. फिर हम अगर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, आफ्टर स्प्लाइस रिमूव our array, what we are expecting, 100, 200 and 30, right? Okay, if I run the query, the answer that we are getting after splice remove 100, 200, 30, 20 is removed. Okay, 20 is removed. Now we will be doing replace. तो replace होता क्या है? replace is nothing but remove करेंगे कुछ चीजें, उसके बाद उसके जगह पे add कर देंगे. Okay, remove plus add is replace. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ replace करने के लिए, हमारे पास जो आ रहा है 100, 200, 30, मैं चाहता हूँ ये 200 के जगह पे मैं चाहता हूँ कि मैं ऐड कर दूं 1, 2, 3, 1, 2, 3 में ऐड कर दूं. लाइक व्हाट आई वांट, कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये एरे बन जाए 1, 2, 3, 30. 200 के जगह पे 200 के जगह पे मैं चाहता हूँ 1, 2, 3 ऐड कर दूं. ठीक है, हाउ विल आई डू दैट? एरे स्प्लाइस. ठीक है, फर्स्ट थिंग इंडेक्स कहां से मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ? 200 से. ठीक है, यहाँ पे दे दूंगा 1. फिर कितना एलिमेंट आपको डिलीट करना है? मुझे ये 200 डिलीट करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 1. उसके जगह पे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ 1, 2, 3, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 1, 2, 3. ठीक है, आई होप इट मेक सेंस. फिर मैं कंसोल कर लूंगा. आफ्टर स्प्लाइस रिप्लेस, okay, so this is what I am expecting after splice. Okay, so splice replace 100, 1, 2, 3, 30, 200 has been replaced with 1, 2, 3. Okay, now let's understand what is slice. Okay, slice क्या करता है? It returns a shallow copy of a portion of the array. ठीक है, portion of the array means कुछ elements. ठीक है, like if I explain through an example, हमारे पास जो array है अभी, हमारे पास क्या है? 100, 200, 1, 2, 3 and 30, right? This is what we have in our array right now. तो इसका कुछ पोर्शन मैं चाहता हूँ रिटर्न कर दूं. ठीक है, कैसे?
मैं रिटर्न करना चाहता हूँ कि मुझे 1 2 3 ये पोर्शन मुझे रिटर्न हो जाए। ठीक है, इसका एक शैलो कॉपी मतलब रेफरेंस नहीं होगा, एक नया रेफरेंस बनेगा, तो उसी रेफरेंस पे मुझे ये 3 एरे मिल जाए। ठीक है, और स्लाइस जो मेथड है, इट रिटर्न्स एन एरे। ठीक है, ये रिटर्न एक एरे करता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्लाइस करूंगा दिस इंडेक्स टू दिस इंडेक्स, देन आई विल बी गेटिंग दिस एरे। ठीक है, तो ये होता कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो हमको लेना पड़ेगा दूसरा एक एरे जहाँ पे हम स्टोर करेंगे रिटर्न करने के बाद। ठीक है, एरे डॉट स्लाइस। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। मैं चाहता हूं कि हमें जो पोर्शन मिलेगा एरे का, ये एरे दिस एरे, तो पोर्शन ऑफ दिस एरे, ठीक है, उसका स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 2 3, राइट। 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 1 से, राइट। और 3, ये जो 3 है वो कहाँ पे, 0 1 2 3, पोर्शन 3। एंड पोर्शन 3, इफ आई राइट 3, ओके यस, लेट्स राइट 3। And if I try to console.log array to after slice, ठीक है, ये जो होगा array 2, यहाँ पे array 2 हम प्रिंट कर रहे हैं। so what will be the answer of it, let's understand, let's see। हमें मिला 1 2, but we are expecting 1 2 3। we had given starting index and ending index, but still we are getting 1 2 3, why? तो स्लाइस पे क्या होता है, जो एंड इंडेक्स होता है वो कंसिडर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 दे दिया, लेकिन यहाँ पे 3 कंसिडर ही नहीं हो रहा। यहाँ पे 3 से पहले जो एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड होता है, और एंड इंडेक्स से पहले जो एलिमेंट होगा वो इंक्लूड होता है। उसके बीच में जो रहेगा सारे एलिमेंट्स, दे विल बी स्लाइस्ड इनटू एन अनदर एरे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 3 को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम देखिए 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फिर रन करता हूँ तो हमें मिलेगा 1 2 3। ओके, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने स्लाइस कर दिया एरे को। ठीक है, फर्स्ट एरे को हमने स्लाइस कर दिया, तो स्लाइस करने के बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरे, क्या इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से हमने 1 2 3 स्लाइस कर दिया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 130। लेट्स सी, कंसोल कर लेते हैं इसको। आफ्टर स्लाइस एरे, ठीक है, एरे प्रिंट कर रहे हैं, द वैल्यू विल बी गेटिंग दैट इज 100 1 2 3। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें जो फर्स्ट एरे है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बट इट इज रिटर्निंग ए पोर्शन ऑफ द एरे टू अनदर एरे। यहाँ पे हम स्टोर करें, ये एक एरे रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे, 1 2 3, और उसको हम एरे 2 में स्टोर करें। आई होप यू guys are understanding। okay, now let's understand concat। concat मेथड क्या करता है, तो concat मेथड क्या करता है, merges two or more arrays। क्या करता है, मर्ज कर देता है। अगर हमारे पास 2 एरेज है तो उसको मर्ज कर देता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं लेट नम्स 1, एक एरे हो गया 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, लेट नम्स 2 एक एरे हो गया, ये हो गया 4 5 6। ठीक है, मैं चाहता हूँ इन दोनों को मर्ज करने के लिए। ठीक है, नम्स 1 डॉट मर्ज, राइट, सॉरी, concat nums 2 after concat nums 1 और nums 2 वालों, दोनों एरे हम प्रिंट करें। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, डू यू एक्सपेक्ट कि 1 2 3 और 4 5 6 आएगा एक एरे में। लेट्स सी, कंसोल कर रहे हैं, क्या कंसोल कर रहे हैं हम, nums 1 और nums 2 दोनों एरे। ठीक है, हमें जो मिला है 1 2 3 एक एरे में आया, 4 5 6 एक एरे में, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, कंकैट करने के बाद इफ आई ट्राई टू प्रिंट ओनली नम्स, ओके, हमें 1 2 3 आ रहा है, मतलब नम्स 1 पे तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इफ आई प्रिंट नम्स 2,
4 5 6 nums 2 में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो कंकेट हुआ कहाँ पे? तो कंकेट क्या करता है, ये मर्ज करता है यहाँ पे, ये यहाँ पे मर्ज करता है, लेकिन ये एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है, वो होता है मर्ज्ड एरे। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं nums3 और एक एरे लेते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं, वहां पे कंकेट होने के बाद जो एरे रिटर्न होगा उसको स्टोर करते हैं। nums3 में हम स्टोर कर रहे हैं nums1 कंकेट nums2, यहाँ पे मैं देता हूँ 3। तो nums3 का वैल्यू क्या हो? तो मोस्टली बेसिकली ये क्या करता है कि 1 2 3 एंड 4 5 6 को मर्ज कर देता है। ये एरे हो गया 1 2 3 और ये हो गया nums2, मर्ज कर देता है सिंगल एरे पे, सिंगल एरे रिटर्न करता है nums3 को, nums3 को जब कंसोल करते हैं हमें मिलता है 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ द मेथड इज इंडेक्स ऑफ व्हाट डज इट डू, फाइंड्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और एक एरे ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1 2 3 10 20 30। ये हमारे पास एक एरे है x, ठीक है, हम चाहते हैं और एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 10 फिर से ऐड कर देते हैं, ठीक है, दो 10 है, 10 दो बार है यहाँ पे। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लेट्स सी, यहाँ पे एक लेते हैं इंडेक्स 10, इंडेक्स ऑफ 10 भाई लेते हैं वेरिएबल, फिर x पे इंडेक्स ऑफ रन करते हैं, 10 ढूंढते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो ढूंढता है द वैल्यू इट हैज बीन पास्ड इन इट्स पैरामीटर, पैरामीटर पे जो वैल्यू है वो ढूंढता है। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ये रिटर्न करता है उसका इंडेक्स। अगर इंडेक्स होगा, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमने 10 पास किया, तो अगर 10 इज प्रेजेंट देन इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ 10, ठीक है। इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, तो 3 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। इसको हम अगर विवरण प्रिंट करते हैं, इंडेक्स ऑफ 10, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल दे देंगे, तो ये इंडेक्स फाइंड किया, फिर उसको रिटर्न कर दिया, स्टोर कहाँ पे हुआ, इंडेक्स ऑफ 10 पे। तो हम इसको रन करते हैं तो हमें मिलता है 3, ठीक है, 3 पे 3 मिलता है। लेकिन द क्वेश्चन इज हमारे पास 5 में भी है और एक 10, लेकिन इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है, द फर्स्ट एलिमेंट, फाइंड्स द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो होगा, फर्स्ट जो आएगा उसी को रिटर्न करेगा, ठीक है। सो नाउ अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे 100 ढूंढने के लिए, इफ आई लुक फॉर 100, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, जस्ट गेस, नल, अनडिफाइंड, नहीं, द आउटपुट विल बी -1। अगर इंडेक्स प्रेजेंट नहीं होता तो फिर हमको -1 रिटर्न होता है, ठीक है। तो ये भी समझ गया। बस गो टू इंक्लूड्स, चेक इफ एन एरे कंटेन्स अ स्पेसिफिक एलिमेंट। तो ये क्या चेक करता है कि एरे के पास एक एलिमेंट है कि नहीं, जैसे इंडेक्स ऑफ यू करता है कि एरे के पास कौन सा इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे एलिमेंट है। तो इंक्लूड्स क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि एलिमेंट है क्या, बस चेक करता है, ठीक है। दोनों का यूज सेम तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बट इंक्लूड्स क्या रिटर्न करता है यहाँ पे, अगर वैल्यू होता है तो फिर ये इंडेक्स रिटर्न करता है, अगर नहीं होता तो -1 रिटर्न करता है। फिर इंक्लूड्स क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, कि अगर वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न कर दो, वैल्यू नहीं है फॉल्स रिटर्न कर दो, इट्स वेरी सिंपल। तो एक्स में हमारे पास क्या है अभी, 1 2 3 10 20 10 30। मैं चाहता हूँ कंसोल डायरेक्ट कर लेते हैं, नो नीड टू स्टोर इट इन वेरिएबल। एक्स में इंक्लूड्स चेक करो कि 100 है क्या, तो यहाँ पे 100 है क्या हम चेक करेंगे, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू रिटर्न फॉल्स, तो हमने रन कर दिया, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, राइट। हम कर सकते हैं 10 और 3 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो
हमको मिलना चाहिए ट्रू, तो हमने रन किया, हमें मिला है ट्रू, राइट। ये समझ गया। फॉर ईच मेथड क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स क्रिएट वन फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे हम पास करेंगे एक वैल्यू x, पकड़ लो, ठीक है, फंक्शन वन वन, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये प्रिंट करें, जो भी वैल्यू है यहाँ पे x इंटू टू, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट। ओके, नाउ फॉर ईच यूज करते हैं। फॉर ईच क्या करता है, हमारे पास छोटा सा एरे लेते हैं एक, लेट एरे तो ऊपर डिपेंड है, उसको ओवरराइट कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। फॉर ईच यूज करते हैं। फॉर ईच ये क्या करता है, फंक्शन, फंक्शन इट एग्जीक्यूट्स अ फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन हमको पास करना पड़ेगा, फंक्शन हम देंगे फंक्शन वन, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर पे मैं देना चाहता हूँ ईच एलिमेंट, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन बस, नो नीड टू गिव द पैरामीटर, इट विल टेक द एलिमेंट इन इट्स पैरामीटर, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट, आ गया 2 4 6। यहाँ पे एक फंक्शन पास किया, ये फंक्शन रहा, पैरामीटर एक रहेगा जिसमें सारे एलिमेंट जाएंगे, सारे एलिमेंट, और पहले गया 1, ये प्रिंट कर दिया 1 इंटू टू 2, फिर गया 2 2 इंटू टू 4, 3 है तो 6, राइट, 2 4 6। दूसरे तरीका, फॉर ईच हम फंक्शन इधर से ही पास कर सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन। ये हो गया एरो फंक्शन आपका, ठीक है, एरो फंक्शन। यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, मतलब मैं, चलो मैं सम करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाहर एक वेरिएबल ले लिया सम, डू 0, टू गिव सेमीकोलन, सम पे मैं क्या ऐड करूंगा, आइटम, हो गया। नाउ इफ आई प्रिंट सम, व्हाट विल द आउटपुट, सम इज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सम एक वेरिएबल ले लिया, 0 असाइन कर लिया, फॉर ईच चला, फॉर ईच में क्या होता है, एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, ये हो गया एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में क्या कर रहा हूं मैं, सम पे हर आइटम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या करता है, एग्जीक्यूट ए फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट, ये फंक्शन सारे एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, सारे एलिमेंट के लिए, 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा, सारे के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर हम क्या करें, सम पे ऐड करें आइटम, ये फंक्शन पे क्या करें, सम प्लस इक्वल टू आइटम, आइटम बस ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर सम हम रिटर्न करते हैं, सम विल बी 6, 1 2 3 6, सिंपल। I hope you guys have understood everything that I tried to explain, and it was quite easy to understand. And even we covered some higher order, like for each was one of the higher order function. It is one of the advanced concept that we'll be studying in upcoming chapters. So stay tuned and do like and subscribe to my channel, and see you in the next one.